Prints Publication Private Limited, formerly known as Prints India, was established way back in the year 1966 by my grandfather, late Sri Chandulal Gupta. The objective of the company was to export Indian newspapers, magazines, books, journals across all the categories to worldwide. The main objective was to promote Indian content, Indian authors. The office was started in the Kashmiri Gate area, which was earlier known as Mori Gate. It was the year 1971 when the Prints India office was shifted here in Daryaganj in this building. Since then, it has been our headquarters for the last 50 years. Prints India's business in the early 70s were at a very modest scale. With his determination, hard work, and the objectives, he ensured that we achieve new heights. It was the late 80s, Prints India became a trusted name in the global industry to source Indian publications. It was the year 1989, Prints India received its first export award from the export council called KEPIXL, which is supported by the Ministry of Commerce. Since then till now, we have achieved 17 awards from the KEPIXL. The business was also joined by my father, late Sri Vijay Kumar Gupta, in the late 70s. With his strategic decisions, the company started publication as well. And it was early 90s when my father set up a company called MD Publications Private Limited. We published close to 500 books on various subjects, specializing into social sciences and reference books, meant for higher education and libraries. In the early 2000s, Prints India also started publishing of journals as well. As on date, we publish close to 20 international journals, which are well circulated across the international libraries and universities. Another imprint was started by my father was Global India Publications, where we published close to 200 books. As on date, Prints Publication has so far published 700 books on various subjects. In the early years of the Prints India, export business was primarily operated in the American and the European markets. It was the year 2006. The business was evolving. The technology in the publishing was coming in. A gradual change was there. And we could anticipate the change, that this gradual change which is coming up will completely change the dynamics of the industry. My father, who was not a very tech savvy, asked me to join the business at a very early age. I still remember those days while I was studying in grade 11 and grade 12. After my school times, I used to visit the office and work with his technical team and understand the dynamics of the technology in this publishing world. Since then, we never looked back. We invested heavily in the technology. We invested in the future. We evolved with the time. We created the new markets, the GCC countries, the African market, the Southeast Asian market, which was not primarily explored at that point of time, were explored. We were able to penetrate into these markets and we achieved great success. In the last 50 years, while we operate Prints Publication from this building, there has been several milestones. During the video, we'll be highlighting these milestones, which under the leadership of my late grandfather, Sri Chandulal Gupta, my father, Sri Vijay Kumar Gupta, and now, while I am being assisted and supported by my younger brother, Pratyush, we'll be looking into it.
मैं प्रिंस इंडिया के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि प्रिंस इंडिया में हमारे बॉजी ने शुरू किया था 1966 अप्रैल में, और उनकी जर्नी बड़ी अच्छी से शुरू हुई थी क्योंकि वो चाहते थे कि मैं बुक्स में प्रोडक्ट में आऊँ, और वो चाह रहे हैं कि ये काम जर्नी में साथ साथ शुरू करूँ। और पहले वो डिफेंस वगैरह में थे, और उनकी जर्नी 1966 में वो चाह रहे थे क्योंकि उनके रिटायरमेंट हो चुके थे, और उन्होंने मिलके बुक्स का काम शुरू किया और बहुत अच्छे से शुरू हो गया था। धीरे में शुरुआत में दिक्कतें आई, कठिनाई आई थी, बट उस कठिनाई से भी बढ़ के उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, और वो ट्रैवलिंग 100 कंट्री से ऊपर उन्होंने ट्रैवलिंग करी हुई है, और उस कंट्री के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत से काम किया है। आज वो प्रिंस इंडिया है, आज उसका नाम हो गया है प्रिंस पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। और हमारे पिताजी का भी बड़ा योग था कि उन्होंने बहुत साल मिलकर उन्होंने अच्छे से उन्होंने काम शुरू किया है, और साथ भर के इस कामयाबी का बहुत अंत तक पहुंचा है। और ये तीसरी पीढ़ी चला रहे हैं, जो मेरे बड़े भाई साहब मैं हम साथ मिलकर चल रहे हैं, और इस मंजिल तक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये बहुत ही उनका सपना था कि ये कंपनी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाए, और ये भी चाहते हैं कि बहुत अच्छा है कि और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हुए, क्योंकि इस कंपनी को लेकर बहुत उनकी एक सपना था, एक इच्छा थी। और वो लोग जब मिलते थे कि ये लगता था कि नहीं यार, ये प्रिंस इंडिया एक परिवार सामाजिक है, और ये सामाजिक की तरह समझते थे लोग, क्योंकि प्रिंस इंडिया को फॉर्मेलिटी करते नहीं थे, वो एक परिवार के तरह रखते थे, और वो बड़ी इच्छा थी क्लाइंट को भी क्लाइंट समझते थे, पर क्लाइंट को भी ज्यादा से ज्यादा रिश्ते में रखते थे, क्योंकि उनके लिए एक सब बराबर लोग होते थे। और वो आज भी ये कायम है कि आज दुनिया में भी कहीं पे भी कहते हैं प्रिंस इंडिया के बारे में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से बात करते हैं, और कोई गलत वर्ड बोल ही नहीं सकते क्योंकि उसकी आज पहचान ही एक अलग है। और जो प्रिंस इंडिया बेसिकली कर रहा है तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स में है, और लॉजिस्टिक वगैरह में भी है। स्टार्ट हमने 4 क्लाइंटों के साथ किया था, बट आज हमने 100 से भी ज्यादा क्लाइंटों के साथ हम लोग कर रहे हैं काम, और हर दुनिया में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आ रही है, स्कूल इंस्टीट्यूट से भी कर रहे हैं, साथ साथ हमने और एड ऑन पजल्स वगैरह के लिए भी किया है, एंड टॉयज वगैरह के लिए बारे में हम कर रहे हैं। और हमारे ये इच्छा है कि प्रिंस इंडिया को भी और अच्छे से ब्रांचेस और ज्यादा से ज्यादा खोलें, और लंदन यूएसए में भी हम लोग और कामयाबी पाए। और काफी सारी अच्छी से कैपिटल अवार्ड वगैरह भी मिले हैं, क्योंकि ये कैपिटल अवार्ड वगैरह उस टाइम पे थे जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी और बड़े दिग्गज श्री लाल कृष्ण आडवाणी या पी चिदम्बरम वगैरह से मिले थे, क्योंकि उस टाइम उठना बैठना भी बहुत कम लोगों में था, कि कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं थे, गिनती के 10 जने होते थे। और आज के टाइम में तो बहुत वेरियस कॉम्पिटिशन्स है, और लोगों को मीट फिर भी कर रहे हैं। गिनी चुनी कंपनी में से भी आज भी हम टॉप 10 में से पुरानी कंपनी अभी भी है, और हमें ये आशा है कि ये कंपनी को और तरीके से ज्यादा हो जाए। Hello everyone, my name is Pragati Messi. It has been almost 18 years since I am working with Prince Publication. The environment of company makes me feel secure. Late Shri C.L. Gupta, whom we have properly addressed Bauji, with his complete effort had always ensured about making the environment, the workplace safe and secure for the female employees. I still remember how he used to do surprise inspection of the office and ask us politely about what work we are doing. He was such a hardworking person with a polite behavior, and because of his hard work and efforts, the company has received commendable achievements. From past 18 years, I have heard a lot about him from the people and the staff, and this is only because of his admirable and hardworking personality. Today on his 100th birthday anniversary, we salute him for being a commendable platform, and we will work forward with an assurance of taking his dream and efforts, that is this company to a new height. हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मैं अनीता चित्रा पिछले 22 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ। मैं आज मेरे बाबूजी श्री चंदूलाल गुप्ता जी का 100वां जन्मदिन है। उनके इस जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको सबसे पहले अपने दिल से नमन करना चाहती हूँ। और उनके बारे में क्या बोलूँ, उनका नाम आते ही एक तस्वीर सामने आ जाती है आपके सामने कि वो किस तरह के इंसान थे। मैं उनके साथ जितना भी काम किया उसके बारे में इतना बोल सकती हूँ कि वो एक सीधे सरल और सच्चे इंसान थे और बहुत ही मेहनती इंसान थे। उन्होंने हमेशा दूसरों की हेल्प की है, हमेशा उसके लिए आगे रहे हैं।
और उन्होंने एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। उन्होंने एक कमरे से अपना ये बिजनेस शुरू किया और आज उनका जो बिजनेस उनके आगे उनके बेटे और उनके पोते ने आगे बढ़ाया है, जो आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसे देखकर वो जहां भी होंगे जरूर खुश होते होंगे। आज मैं उनके जन्मदिन पर उनको याद करते हुए उनकी कई बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, पर एक बात मैं जो मेरे दिल को छू गई थी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बार मेरे पर्सनल काम के लिए स्कूल में एडमिशन के लिए बाबूजी मेरे साथ 11 नंबर दरियागंज से महावीर वाटिका काफी दूर है, वहां तक पैदल चलकर वो मेरे साथ स्कूल गए और उन्होंने जाके प्रिंसिपल से बात भी की। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मन में ये नहीं सोचा कि मैं एक बॉस हूँ और मैं क्यों जाऊँ एक एम्प्लॉय के साथ, लेकिन नहीं, उन्होंने ये सब मन में नहीं रखा, वो मेरे साथ गए और उस दिन उनके लिए मेरे मन में इज्जत और भी बढ़ गई कि उन्होंने ऐसा कभी घमंड, कभी अभिमान, ऐसी कोई बात नहीं दिखाई। और वैसे वो आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी ऐसी बहुत सी यादें हैं जो हमारे दिलों में हमेशा अच्छी यादें बनकर रहेंगी। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे बाबा। आदरणीय डायरेक्टर साहब और यहाँ पर आए सभी समस्त व्यक्तिगण को मेरा नमस्कार। आज हमारे बाबूजी की 100वीं वर्षगांठ हम यहाँ सब इकट्ठे हुए, तो उस पर मैं कुछ 2 शब्द कहना चाहूँगा। बाबूजी हमारे बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी किसी जब भी मैंने उनके साथ काफी साल काम भी किया, 23 साल मुझे, उन्होंने कभी किसी में भेदभाव नहीं रखा, कभी छोटे बड़े में कभी भेदभाव नहीं रखा। वो हर वर्कर को एक जैसा ही समझते थे, चाहे वो छोटा चाहे वो बड़ा, और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सोचते थे। और सबसे बड़ी बात उनकी क्या थी, उन्होंने जाते समय से एक बात जरूर कही हमने, पूरे जितने भी हमारे स्टाफ के मेंबर थे, कि बस अपने कर्म अच्छे रखो, और कर्म अच्छे हैं तो आप किसी भी मुश्किल से, किसी भी जो भी परेशानी है उससे आराम से उनसे हम गुजर सकते हैं उस मुश्किल से। बाकी उनके ये मैं 2 पंक्ति कहना चाहूँगा जो जिंदगी के ऊपर है। जिंदगी की यही रीत है कि थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही हम सब ने उनकी ये लाइनें आज तक हमारे दिल में है, तभी हम इस मुकाम पे पहुंचे। मैं अपने आप को इतना बहुत समझता हूँ कि मैं उनके साथ भी काम किया, उनके लड़के के साथ, विजय गुप्ता जी के साथ, आज उनके ग्रैंडसन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। बहुत फख्र है कि मैं उनके साथ काम करता हूँ। मतलब जैसे हमारे बाबूजी थे वैसे ही उनके ग्रैंडसन है, बिल्कुल सेम, वही शक्ल, वही नेचर, सब कुछ सेम वैसे। और मैं चाहूँगा कि मैं आगे भी उनके साथ ऐसे ही बनाऊँ जैसे आप। थैंक यू। मिस्टर चंदूलाल गुप्ता, फाउंडर ऑफ दिस कंपनी प्रिंस पब्लिकेशन के, इनको हम लोग बाबूजी के नाम से जानते हैं। बाबूजी के नाम सुनते ही मैं उनके साथ बहुत टाइम तक रही हूँ, इसलिए मुझे उनके साथ अलग ही फीलिंग होती है हमेशा। उन्होंने डिफेंस में जॉब की, इसलिए वो अनुशासन प्रिय बहुत थे। और बाबूजी ने ऑल ओवर वर्ल्ड ही घूमा, इसलिए उनसे कभी भी बात होती थी तो वो कहते थे मुझे ग्रीस की शाम बहुत पसंद है। और उन्होंने 1966 में ये कंपनी स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट उनको ऑर्डर 6 महीने के बाद क्वींसलैंड कंपनी से मिला। बाबूजी बहुत सोशल वर्कर थे, वो हर फील्ड में सभी की हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे हमेशा। हम शायद उनको कभी भूल नहीं पाएंगे, अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। मेरे लिए वो एक मेरे ग्रैंडफादर या फादर की तरह रहे हैं हमेशा। तो उनको मैं हमेशा मिस करती रहूँगी। जब तक इस कंपनी में रहूँगी उनको हमेशा मिस करूँगी। हैप्पी बर्थडे टू यू बाबूजी। यहाँ पर बैठे हुए सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। आज प्रिंट पब्लिकेशन के लिए खास दिन है, बाबूजी का 100वां जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं कुछ अपने जीवन के गुजारे हुए दिन आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं इस कंपनी में 1988 से लगा हूँ। 34 साल के सफ़र में मैंने 16 साल बाबूजी के साथ गुजारे हैं। बाबूजी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे।
बाबूजी हम लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा देते थे, जिसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। बाबूजी ने हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी और बाबूजी हमेशा कहा करते थे कि अच्छे काम करो, कंपनी में नाम कमाओ। और बाबूजी ने एक शिक्षा दी थी हमें कि अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो उसमें से 40 रुपये बचाना चाहिए। और बाबूजी जब बाहर अपने ऑफिस के काम से बाहर विदेश जाते थे तो वो अपने स्वदेशी कपड़े पहनना पसंद करते थे। नमस्कार, मैं रमेश। बाबूजी के समय जन्मदिन पर 2 बातें करना चाहता हूँ। हमारे बाबूजी एक बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे। वो सबके लिए एक समान मानते थे। उनके लिए चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब एक समान देखते थे। वर्कर के प्रति उनका बड़ा ही अच्छा व्यवहार रहता था। बाबूजी एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति थे। वो हर इतवार को आर्य समाज में जाते थे और 5 बजे अपना पार्क में जाते थे सुबह। बाबूजी का नियम था कि वो हर दिन अपना काम पे टाइम पे जाए। बाबूजी हमारे इतने अच्छे थे कि उनकी हर बातें याद रहती है। बाबूजी जब कुछ समय बाद हम वहाँ पर काम करते थे तो वे हर रोज आके पूछते थे कि कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हर रोज वो अपनी बातें हमसे पूछते थे। कोई तबीयत है, कैसी है, क्या, सब घास बता पूछते रहते थे। बाबूजी भी बोलते थे कि कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आकर बता देना। बाबूजी बताते थे, पहले मैं जॉब करता था और फिर मैं ऐसे धीरे धीरे अपने साइकिल पर मैगजीन और पेपर का काम शुरू कर लेता था। सुबह ही मैं अपना नाश्ता वास्ता करके चला जाता था। दिन में मैं रात को ही दिन के लिए अपनी रात की रोटी बना के रख लेता था। ऐसे में मैंने अपनी जिंदगी स्टार्ट करी है। आज जो भी हूँ मैं अपनी मेहनत पे खड़ा हूँ और आगे तुम भी अपनी मेहनत करते रहो। ये हमारे बाबूजी के अच्छे विचार थे जो सबसे मेल मिलाप करके रखते थे। आगे मैं क्या कुछ कहना चाहता और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे लोग थे। धन्यवाद। मैं हरीश। बाबूजी के साथ मेरे पिताजी ने 15 साल काम किया था। पापा ने मेरे को बोला अच्छे स्वभाव के हैं, अच्छे हैं, और उन्होंने बोला तू भी इनके साथ काम करना। मैं इनके साथ काम तो 15 साल मेरे को भी हो चुके हैं। बहुत अच्छे थे स्वभाव के और अच्छे से रखते थे, प्यार से बोलते थे, सबसे अच्छे से करते थे। पापा ने बहुत तारीफ करते थे उनके। आने वाले उनके बच्चों के साथ भी वो भी अच्छे से रखते हैं, प्यार से रखते हैं और अच्छे शिक्षा देते हैं, अच्छे बोलते हैं कि ऐसा मत करो, गलत काम मत करो, अच्छे ही पढ़ना देते थे हमको। आज मैं भी 15 साल हो गए। बाबूजी मैंने तो देखे नहीं, पिताजी थे, पिताजी ने भी उनके बारे में बहुत चीज़ बताया मेरे को, अच्छे थे ये। और उनके आज 100 साल पूरे हो गए। इस ऊपर हमें भी बोलने का मौका मिला। बस ये उन्हीं के साथ हूँ, अभी कर रहा हूँ, आगे तक चलता रहूँगा। मैं गोपाल हूँ, बाबूजी का ड्राइवर हूँ। नमस्कार। मैं आज बाबूजी के 100वें साल के उपलक्ष्य में कुछ बोलना चाहता हूँ। बाबूजी के साथ 7 साल काम किया। बाबूजी ने कुछ सीखा हुआ काम मुझे अभी भी याद है। वो हमेशा रोड पे चलते थे, दाएं साइड को रखना गाड़ी बोलते थे और बीच में मत रखना, ट्रैफिक में बोलते थे। दोनों तरफ से दब जाती है गाड़ी बोलते थे। और वो दुख सुख में बाबूजी सब खड़े रहते थे। वो बार बार पूछते थे ठीक है कि कैसे हो। वो सब कोमल इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान। 100वें जन्मदिन में मुबारक हो बाबूजी। Hello, myself Akhilesh Kumar Gupta. I am working since 2009 with this company. I would like to congratulate to our managing director Mr. Pranav Gupta and Pratyush Gupta ji on occasion of their grandfather 100th birth anniversary and the completion of 55 years of Prince Publications. हाय, माइसेल्फ गंगा रावत और मैं प्रिंस पब्लिकेशन में पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस विद प्रिंस पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा रहा है और ये अब जो कि बहुत ही ख़ास मौका है हमारी कंपनी के लिए, क्योंकि प्रणव सर और प्रत्युष सर अपने दादाजी लेट श्री चंदूलाल गुप्ता जी का 100th बर्थडे
सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके साथ ही हमारी कंपनी को 55 साल भी पूरे हो जाएंगे, जिसके लिए मैं उन्हें अपने दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मैंने प्रणव सर के फादर श्री विजय कुमार गुप्ता जी के साथ भी काम किया है और जिससे मुझे बहुत कुछ उस टाइम भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था, जिसे मैंने आगे अपनी लाइफ में ग्रो किया है। और प्रणव सर के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी मैं, वो जनरली बाय हार्ट एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वैसे तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स ऑलरेडी ले लिए हैं, लेकिन अब वो अपनी लाइफ में एक नई इनिंग शुरू करने जा रहे हैं एज ए ऑथर। उसके लिए मैं उन्हें बहुत ही दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और एक सॉन्ग की 2 लाइनें जो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी वो ज़रूर गाऊँगी मैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। बेस्ट ऑफ लक सर। Hello, I'm Shalu. I'm here and feeling honored to express my feeling. First, I would like to congratulate Mr. Pranav Gupta and Pratyush Gupta on the grand occasion of celebrating 100th birth anniversary of their grandfather, late Mr. Chandulal Gupta ji, and also completing 55 years of Prints publication. I was a part of this company in 2014 and I'm happy and obliged that again I got a chance to be a part of this Prints family. Pranav sir has given me a commendable platform and we will work forward with an assurance of taking his dream and effort to reach the company to a higher position. That's all. Thank you. I am Lakshita and I am the youngest and the newest employee of Prints Publication Private Limited. It has been 3 months since I have started working here. Firstly, I would like to congratulate Pranav sir and Pratyush sir for their grandfather's 100th birth anniversary and for completing 55 years of Prints Publications Private Limited with great success and excellence. It's a very proud moment for me that I'm a part of this organization. I would like to thank Pranav sir and Pragati ma'am for giving me this opportunity to give my best efforts for this organization. Thank you. I am Niru and I am employee of Prints Publication Private Limited. Firstly, I would like to congratulate Pranav sir and Pratyush sir for their grandfather, late Mr. Chandulal Gupta ji, 100th birth anniversary for completing 55 years of Prints Publications Private Limited along with great excellence and success. It is very proudful moment for me that I am also a part of this special occasion. Thank you Pranav sir. मैं राम सिंह खट्टा प्रिंट्स इंडिया का एक एक्स एम्प्लॉई हूँ। मैंने 1988 में प्रिंट्स इंडिया ज्वाइन की थी। CL गुप्ता, जिनको हम बाबूजी के नाम से जानते थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी तरह काम किया। हम उनकी बहुत सपोर्ट करते थे, वो हमारी इतनी सपोर्ट करते थे, उनके साथ हमारे घर जैसे रिलेशन थे। और जब भी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत थी उन्होंने हमें मना नहीं किया। मैंने 1988 में लाइब्रेरी का काम संभाला था और उनको जो सपोर्ट उनको फ़ॉरेन के लिए चाहिए होती थी हम उनको देते थे। सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों कैटलॉग हम बना के देते थे। और इवन उनके टाइम में इतना राइज़ किया प्रिंट्स इंडिया कि इनको एक्सपोर्ट अवार्ड मिलना स्टार्ट हो गए। और उसके बाद जब भी बाबूजी यहाँ इंडिया में होते थे तो उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, एक घरेलू एटमॉस्फेयर होता था। बाबूजी कई बार लंच में मिल जाते थे तो हम उनके साथ कई बार बाहर जाते थे, वो हमें ले जाते थे कि चलो वहाँ फ्रूट चाट खानी है, जूस पी के आना है, तो हम उनके साथ बहुत एंजॉय करते थे और ऐसे लगता था कि बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह डील करते थे हमारे साथ। बाबूजी का जितना योगदान हमारे साथ रहा है, हमारे लिए रहा है, वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। जब भी हमें कोई भी किसी तरह की कोई मुसीबत आती, बाबूजी कई बार तो हमारे साथ ऐसे मजाक भी कर लेते थे आपस में और इतना अच्छा लगता था कि जिसको हम आज भी अगर बाबूजी का नाम याद आता है तो हम उन्हें आज भी याद करते हैं। बाबूजी का जन्मदिन 19 मार्च का है। 19 मार्च को उनका 100वां जन्मदिन है और 100वां जन्मदिन प्रिंट्स पब्लिकेशन बड़े धूमधाम से मना रहा है। इन शब्दों के साथ मैं बाबूजी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर PK अग्रवाल प्रथम श्री CL गुप्ता जी से
सन 1992 में मिला। मिलते ही वे मेरी प्रथम अंग्रेजी में शोध पुस्तक लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच टू लैंड रिफॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश प्रकाशित करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, अग्रवालों के लड़कों को ऐसे ही आगे आना चाहिए, हमें विदेशों के पुस्तक बाजार पर कब्जा करना है। वे एक अनुशासन प्रिय तथा चरित्रवान व्यक्ति थे। उनका इसके बाद भी मुझ पर वरिष्ठ आत्मीय जन जैसा स्नेह बना रहा। इसके बाद उनके पुत्र विनय गुप्ता ने मेरी 3 पुस्तकें उचित ढंग से संपादित करवाकर प्रकाशित की, जिससे मैं अंग्रेजी लेखक के तौर पर स्थापित हो गया। उनके योग्य उत्तराधिकारी प्रणव ने भी मेरी एक पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की है, जो भारत के विकास पर है। विजय गुप्ता के समय से ही मेरे प्रिंट्स पब्लिकेशन से बड़े अच्छे संबंध रहे। तब यह एमडी पब्लिकेशन के नाम से प्रसिद्ध था। मैं सोचता हूँ कि यदि श्री CL गुप्ता जैसे ईमानदार, समर्पित तथा अनुशासन प्रिय प्रकाशक हो जाएं, तो दिल्ली का दरियागंज पुस्तक एवं शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन का एक ऐसा केंद्र बनकर उभरेगा, जो एशिया में ही नहीं, विश्व का पुस्तकों एवं पत्रिकाओं एवं वैज्ञानिक और विशिष्ट क्षेत्रों के जर्नलों का केंद्र घाटी बनकर उभरेगा। मैं आप सभी को श्री CL गुप्ता के 100 जन्मदिन पर तथा प्रिंट्स इंडिया के 50वें जन्मदिन पर अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं तथा प्रणव एवं प्रिंट्स पब्लिकेशन के परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं। While the world was still recovering from the COVID-19, we were dreaming big. We wanted to achieve it. And it was October 2020, we shifted to this new location. The new location known as Viraj Tower 2. Viraj, a name derived from Sanskrit, is a combination of the name of my parents, Vijay and Rajni. The new office location is very close to us because there are multiple digital initiatives which we have taken place here. Whether it is founding of Frontless Media, whether it is founding our COVID innovation, the virtual exhibition platform Pragati, the incorporation of Advait Toys, and the Viraj Educational Resources. I think the new office is bringing a lot of opportunity for us, and there is a lot we are going to achieve it as we dream of it. I would like to thank all the team members at Prints Publication, OML, Frontless Media, Pragati, and Viraj Educational Resources. I also take this opportunity to thank all our customers, suppliers, and the vendors who have been a part of the tremendous success we have achieved in the last 55 years. I would also take this opportunity to thank all the family and friends who have been with us in our thick and thin. We look forward to grow together.